મિત્રો, હું સંગીતા સિરવાની તમારું સોચના યુટ્યુબ ચેનલ ઉપર તમારું ખૂબ ખૂબ સ્વાગત કરું છું. આજે આપણે એવા યુવા લેખક ઉભરતા કલાકારને મળી રહ્યા છીએ જેણે સમાજમાં પોતાનું એક સ્થાન મેળવ્યું છે અને આજની યુવા પેઢીની માટે એક સંદેશ લઈને આવ્યા છે. શબ્દો તો માત્ર એક ભાષાની અભિવ્યક્તિ છે. જેવી રીતે આપણે કંઈક લખીએ છીએ તો એના માટે આપણે શબ્દોનો ઉપયોગ કરીએ છીએ. શબ્દો છે તો એનાથી લેખન કાર્ય થાય છે, એનાથી અભિવ્યક્તિ થાય છે. માણસને એ એક આઈડિયા આપે છે કે આપણે શું વિચારીએ છીએ અને શબ્દો થ્રુ એને નિરૂપણ કરીએ છીએ. મિત્રો, રસ્કિન બોન્ડ, રોબર્ટ ફ્રોસ્ટ, આપણે ઝવેરચંદ મેઘાણીજી, એમની સૌરાષ્ટ્રની રસધાર, એ તો ભૂલી જ ના શકીએ આપણે. અરુંધતી રોય, સુધા મૂર્તિ, કેટલા મોટા લેજન્ડ્સ છે આ લોકો, કેટલા મોટા લેખક છે. આપણે એમને વાંચ્યું છે અને આપણા જીવનમાં એમના વિષયો ઉપર આપણે મંથન કર્યું છે અને આપણા જીવનમાં એની ઉપર કરી રહ્યા છે. એમનું મંથન કરીને આપણા જીવનમાં આપણે નિરૂપણ પણ કર્યું છે. મિત્રો, એક વસ્તુ, એક સામ્યતા છે આ લોકોની. એ લોકોએ એમના જીવનમાં એક પાકટવય, એટલે કે એવી ઉંમર, એક પરિપક્વતાની ઉંમરમાં એમણે લખાણ શરૂ કર્યું અને એ વખતે એમની પાસે મેચ્યોરિટી હતી અને એમણે પોતાની પુસ્તકો લખવાની ચાલુ કરી. મિત્રો, એ મેચ્યોરિટીની એજ હતી, એમને સમજ હતી. પરંતુ આજે આપણે જે વ્યક્તિત્વની આપણે જાણકારી લઈશું, જેમનું આપણે સાક્ષાત્કાર કરીશું, એટલે કે ઇન્ટરવ્યૂ લઈશું ને મિત્રો, એ તો માત્ર 18 વર્ષની ઉંમરમાં એમણે બહુ મોટું અચીવમેન્ટ મેળવ્યું છે. જી હા મિત્રો, એ છે પ્રીત વાધવાની, જેની આટલી નાની ઉંમરમાં 4 પુસ્તકોનું સંકલન કર્યું છે. ઓનલાઈન તો લખવાનું કાર્ય ચાલુ જ છે. મિત્રો, સૌથી મોટી વસ્તુ એ છે કે એમણે, પ્રીત વાધવાનીએ, આટલી નાની ઉંમરમાં ભણવાની સાથે સાથે કોરોના કાળનો સદુપયોગ કર્યો અને એમણે આજની યુવા પેઢી માટે એક ઉદાહરણ સાબિત કર્યું છે. મિત્રો, આ કેવી રીતે શક્ય છે? આ શક્ય થયું એમના સંસ્કારોથી. આધ્યાત્મનું વાતાવરણ, સેવા શું છે, કેવી રીતે કરાય, સેવા અને માનવતાનો સંગમ ભેગો થયો ત્યારે એ બન્યા પ્રીત વાધવાની. મિત્રો, વધારે તો આપણે વાત ના કરીએ આની માટે, એમને રૂબરૂ મળીએ. પરંતુ એક સેન્ટેન્સ, એક વાક્ય હું જરૂર કહીશ કે માતા પિતાના જે ઘરથુથીમાંથી સંસ્કાર મળ્યા છે ને, એમણે એમની કેળવ્યા છે પોતાના જીવનમાં. અને એટલે જ તો કહેવાય છે, મોરના ઈંડા ચીતરવા ના પડીએ. તો ચલીએ મિત્રો, આજે આપણે એમને ઇન્ટરવ્યૂ લઈએ, એમનો સાક્ષાત્કાર કરીએ. આપનું સ્વાગત છે પ્રીતભાઈ. કેમ છો તમે? મજામાં. અને બહુ જ આનંદ થાય છે આજે તમારો ઇન્ટરવ્યૂ લેવા માટે, કારણ કે આજે તમે અમારી યુવા પેઢી માટે એક સંદેશો આપી રહ્યા છો. અત્યારે તમે શું કરી રહ્યા છો પ્રીત? હું ઇન્ટિરિયર ડિઝાઇનનું ભણું છું. ફર્સ્ટ યરની એક્ઝામ કમ્પ્લીટ કરી હતી. મિત્રો, મેં જેમ કીધું કે શબ્દો તો मात्र एक ज़रियो छे, एक निमित्त छे समझावा माटे. प्रीत भाई, हमारे दोस्त आपको सुन रहे हैं और आपका मैसेज सुनने के लिए बहुत उत्सुक हैं वो लोग भी. आप अभी आपकी परीक्षा यानी एग्ज़ाम्स ख़त्म हो गई है? हाँ जी, अभी मेरी सेकेंड सेम की इंटीरियर डिज़ाइन की परीक्षा ख़त्म हुई. इंटीरियर डिज़ाइनिंग का मैं कोर्स कर रहा हूँ. जी, बहुत अच्छी बात है. तो दोस्तों, आप देख रहे हैं, તમે જોઈ રહ્યા છો કે માત્ર 18 વર્ષની ઉંમરમાં પ્રીત, आपकी लेखन की शुरुआत कैसे हुई? एक्चुअली मेरी लेखन की शुरुआत कोरोना में ही हुई थी. जब कोरोना था, काफ़ी लोग डिप्रेस भी हो चुके थे, लॉकडाउन भी था, तब मेरी कोरोना की शुरुआत हुई. और मैंने सोचा कि मैं ऐसी कुछ स्टोरी लिखूं जिससे सबको मोटिवेशन मिले. तो मैंने जो पहली स्टोरी लिखी थी उसमें मैंने ये लिखा कि कोरोना और ओल्ड एरा में क्या फ़र्क था और न्यू एरा में भी क्या फ़र्क था. तो मैंने वो स्टोरी लिखी और उसके बाद सबको बहुत अच्छी लगी स्टोरी और उसके बाद से मेरी जर्नी स्टार्ट हो गई. आपकी ये जर्नी कैसी थी?
बहुत ही अच्छी जर्नी थी। इसमें सबसे बड़ा योगदान फैमिली का ही रहा, क्योंकि हमेशा से उनका ही सपोर्ट रहा है, उनका ही मोटिवेशन रहा है। इसलिए ये जर्नी मेरे लिए आसान भी रहती गई और मैं ज़्यादातर लाइव एग्जाम्पल्स का ही ध्यान रखता हूँ, ऑब्ज़र्व करता हूँ और उस बेसिस पे मैं मोटिवेशनल स्टोरीज़ लिखता हूँ। आपने बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन दी। प्रीत, आपकी प्रेरणा कौन है? ये आपने कौन सी उम्र से शुरुआत की लिखने की? मैंने 13-14 साल की उम्र से ही शुरुआत की, पर उससे पहले जो इंग्लिश सब्जेक्ट होता है उसमें मेरा बहुत इंटरेस्ट था। स्कूल में भी लिटरेचर में, लैंग्वेज में मुझे बहुत अच्छे मार्क्स भी आते थे और मेरा इंटरेस्ट भी बहुत अच्छा था। तो उसके बाद मैंने एक बार डिसाइड किया कि मैं इसमें लिखूं और मेरी प्रेरणा हमेशा से ही मेरे पापा रहे हैं, मेरे चाचू रहे हैं और उनसे बहुत कुछ सीखने को मिलता है। जैसी उनकी जर्नी रही है, उनके लाइव एग्जाम्पल से बहुत कुछ सीखने को मिलता है और मम्मा का भी बहुत ही अच्छा सपोर्ट है। तो ये फैमिली ही है जिसने सपोर्ट किया, क्योंकि मेरे दादा से लेके चाचू, पापा, उनका इन सब चीज़ों में स्पिरिचुअलिटी एंड ह्यूमैनिटी को बहुत मानते हैं। तो मैंने यहाँ से इंस्पायर होके अपनी जर्नी स्टार्ट की और उनके आशीर्वाद से मैं आगे बढ़ रहा हूँ। મિત્રો, કેટલી સારી વાત છે કે પરિવાર જ આધ્યાત્મનું વાતાવરણ, માનવતા અને સેવા શીખવાડે છે. એટલે તો કીધું મિત્રો મેં તમને, મોરના ઈંડા ચિતરવા ના પડે. મિત્રો, આપણે આગળ વધીએ આપણા ઇન્ટરવ્યૂમાં. प्रीत, आप मुझे बताइए आगे आपके क्या प्लान है और अभी तक आपने जर्नी जो की है उसमें आप किस तरह से आगे अपने आप को देख रहे हैं? मैंने अभी तक 4 बुक्स कंपाइल की है एंड स्टोरीज़ भी मैं स्टोरी मिरर ऐप है, प्लेटफॉर्म है, उसमें मैं लिखता हूँ एंड मुझे अवार्ड्स भी मिले हैं। ऑथर ऑफ द ईयर के लिए मैं नॉमिनेट भी हुआ हूँ एंड आगे मैं बस मोटिवेशनल स्टोरीज़ ही लिखना चाहता हूँ जिससे इंस्पिरेशन मिले लोगों को और कुछ थोड़ा बहुत उससे सीख के वो अपने लाइफ में इम्प्रूव करे। एंड मैंने एक जूली इंटरनेशनल बुक्स ऑफ अवार्ड में भी मैंने अप्लाई किया है, तो वो इस मंथ के एंड में रिजल्ट्स आ जाएगा। तो लेट्स होप फॉर द बेस्ट। ये बहुत अच्छी बात कही प्रीत। आज की जनरेशन जिस दिशा में जा रही है, એવું કહી શકાય કે આજનું યૌવન ધન વેડફાઈ રહ્યું છે સોશિયલ મીડિયા પાછળ પણ અને એવી અવિરત દોડ પણ જે આંધળી દોટ મૂકી છે. આપણે પ્રીતને પૂછીએ કે એમના આના માટે શું વિચારો છે. आज की युवा पीढ़ी की आप किस दिशा में देख रहे हैं, उनको आप क्या मार्गदर्शन देना चाहेंगे? आज की युवा पीढ़ी को ह्यूमैनिटी के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है कि अच्छा इंसान क्यों हमें बनना चाहिए और वो क्या होता है, क्योंकि अच्छा इंसान अगर हम बनेंगे तो ही हम कहीं ना कहीं अपने लाइफ में भी सक्सेसफुल रहेंगे। अभी बहुत लाइफ हमारी फास्ट है कि हमें कई बार तो ख्याल ही नहीं रहता है कि हम क्या कर रहे हैं या अपने लाइफ में बहुत ज़्यादा बिज़ी हो जाते हैं। पर जो कोविड में हमने सीखा कि लाइफ कैसे जीनी चाहिए, कि फैमिली के बिना तो हमारी लाइफ बिल्कुल अधूरी है और इंसानियत जो हमारे अंदर आनी चाहिए वो उसके बिना तो हम कभी लाइफ जी ही नहीं सकते। कि जैसे एक दूसरे को हेल्प करके और एक दूसरे को पूरा सपोर्ट करके। एंड कई बार ऐसा लगता है कि हमारा ईगो इन सब चीज़ों से बहुत बड़ा हो जाता है, तो हमें अपने ईगो को कंट्रोल करके पर जो हमारा ह्यूमैनिटी है उस पे ज़्यादा फोकस करना है। एंड मैं समझता हूँ कि ये सारी चीज़ें हमें भगवान ने ही दी है, तो हमें स्पिरिचुअलिटी के और भी झुकना है, क्योंकि कहीं ना कहीं हमारे लाइफ में ये भी मिसिंग है। हम लोग
भगवान को थैंक यू नहीं बोल पाते हैं। चाहे जो भी धर्म हो, सारे धर्म एक जैसे ही है, तो हमें उसमें जुड़ना है। तो अपने आप स्पिरिचुअलिटी प्लस ह्यूमैनिटी, अगर ये दोनों चीज़ें हम ध्यान रखेंगे तो अपने आप हमारी लाइफ बहुत सुधर जाएगी और सबसे ज़्यादा हमको ही खुशी मिलेगी और पीस मिलेगा। बहुत ઉચ્ચ વિચાર હે। આટલી નાની ઉંમરમાં આટલી મેચ્યોરિટી, दोस्तों कहવું પડે। प्रीत, आज की पीढ़ी आपके हिसाब से कौन सी दिशा में जा रही है? आप क्या कहना चाहेंगे उसके बारे में? मेरे हिसाब से तो अभी जो कोविड के बाद से थोड़ा सा रियलाइजेशन चालू हुआ है कि हमें कहाँ जाना है, और थोड़े से लोग इम्प्रूव हुए हैं, पर अभी भी काफ़ी कुछ चीज़ें हैं जो हमें अपनी लाइफ में सुधारनी है। जैसे मैंने कहा ना कि ह्यूमैनिटी है, और काफ़ी ऐसा भी हो जाता है कि हम लोग सिर्फ अपने बारे में ही सोचते हैं, पर अगर हम लोग दूसरे के बारे में सोचेंगे तो उससे तो कुछ नुकसान तो है नहीं, उल्टा हमको ही ज़्यादा खुशी मिलेगी उससे, और सेटिस्फेक्शन मिलेगा, और सामने वाले को तो मिलेगा ही। तो हमें यही कोशिश करनी है कि मिलजुल कर हम लोग लाइफ जो है, इतनी प्रीशियस लाइफ भगवान ने जो हमें दी है, तो उसका हम लोग फ़ायदा उठाएं और एक दूसरे को काम आए। बहुत સહી કહા મિત્રો। આટલી નાની ઉંમરમાં ઘણું બધું ટેલેન્ટ આપણી વચ્ચે સમાજમાં છુપાયેલું બેઠું છે। જરૂરત છે માત્ર અહીંને ત્યાં નજર કરવાની, એમને બહાર કાઢવાની। મિત્રો, થોડોક પ્રયાસ તમે કરજો, થોડો પ્રયાસ અમે કરીશું, અને ભેગા મળીને આ યુવાધનને, જેનું જીવતું જાગતું ઉદાહરણ આપણી સામે છે, એ છે પ્રીત વાધવાની। આધ્યાત્મ, માનવતા અને સેવાનું ઉત્કૃષ્ટ ઉદાહરણ। મિત્રો, છેલ્લે એક પ્રશ્ન રહ્યો, એમનો સંદેશ આપણી યુવા પેઢી માટે। बस मेरा संदेश तो और मैसेज तो यही है कि अच्छा इंसान बनिए, और अपने माता पिता की बहुत हम रिस्पेक्ट करें, उनको वो ही सब कुछ है। और लाइफ में हमें बहुत प्रॉब्लम्स आएंगे, और दो तरह के लोग मिलेंगे, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। जैसे ये इंटरव्यू भी है तो सबकी सेम थिंकिंग नहीं होगी, कोई सोचेगा कि नहीं ये बातें सही नहीं है, या किसी किसी को बोरिंग भी लगेगी, पर किसी किसी को बहुत अच्छी लगेगी। और मैं यही चाहूँगा कि इस इंटरव्यू से थोड़ा भी इंस्पायर होके वो अपनी लाइफ में कुछ सुधारा लाए, और बस यही है कि अच्छा इंसान बनिए, एक दूसरे को मदद कीजिए, और अपने जो लाइव एग्जाम्पल्स है उससे हमें सीखना है, और हम लोग वो लिख भी सकते हैं। तो बस अच्छा इंसान बनिए। हम लोग जो मालिक है, भगवान है, उनको भी हम लोग शुक्रिया अदा करें, हमारे पेरेंट्स को भी शुक्रिया अदा करें जिन्होंने हमें इतनी अच्छी लाइफ दी है, और इस लाइफ का ज़्यादा से ज़्यादा सदुपयोग करके हम लोग अपने जीवन में आगे बढ़ें। ये सब हम करेंगे तो अपने आप ही सक्सेस मिल जाएगी। आज मैं भी सबसे बहुत कुछ सीख रहा हूँ, और मेरी भी कोशिश यही है। तो प्लीज़ आप लोग ऐसे ही आगे बढ़ते रहिए अपने जीवन में। थैंक